Dear friends, greetings to you, every one of you, in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So, today the Lord is going to speak to every one of you through His Word of God. और आज परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने वचनों के द्वारा। So, many of us, we are continuously praying for the 40 days during the time of before the resurrection and the crucifixion of Jesus Christ. और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 40 दिन लगातार प्रार्थना करते, उपवास करते हैं उस दिन तक जब यीशु मसीह फिर से मुर्दों से जी उठा। So, why these 40 days? और क्यों है ये 40 दिन? What is happening in these 40 days? और इन 40 दिनों में होता क्या है? So that is very important और ये बहुत ही जरूरी है because Bible is a book of full of meaning. और जो बाइबल ऐसी किताब है जिसमें हर चीज के बारे में समझ दी गई है। So the 40 days it is having a lots of significant insight. और ये 40 दिनों के अंदर बहुत ही गहरी बातें छुपी हुई हैं। Several times it is mentioned in the Bible. और बहुत बार 40 दिन के बारे में बाइबल में लिखा गया है। Also it is mentioned about the 40 years. और ये भी बताया गया है कि 40 सालों में क्या होता है। 40 days and 40 years. 40 साल और 40 दिन के बारे में बार बार बताया गया है। So this 40 days, very importantly, Jesus Christ, He fasted and prayed for 40 days. और हम सब जानते हैं 40 दिन यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और उपवास किया। So Matthew chapter 4 verse 2 says. मत्ती उसका 4:2 इस तरह से कहता है। So Jesus, led by the Holy Spirit, and he taken into the wilderness to be tempted by the devil. और इसमें इस तरह से कहते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वो उसे ले गई उस जगह पे जहाँ पे शैतान ने उसकी परीक्षा करी। So Jesus Christ overcame the devil. और आपको पता है यीशु मसीह ने शैतान पे विजय पाई है। So through the word of God. और वो वचनों से पाई है। So the devil started tempting Jesus more and more. और जो शैतान था वो बार बार उन्हें उकसाने की कोशिश करता था। But he overcame every situation. It is written in the word of God. और जो कुछ वो अपने सामने देख रहे होता हुआ देख रहे थे उन सब से वो उभर के आ गए जैसा वचनों में लिखा हुआ था। So the 40 days, as per the Bible researchers, they are explaining like this: if any human being 40 days practicing something regularly, they will totally habitual for that for what they are implemented during the 40 days. तो बहुत से शोधकर्ता हैं जो बाइबल के हैं वो कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान 40 दिन तक लगातार एक चीज करता चला जाए तो वो उसकी आदत में आ जाता है। So that means the 40 days somebody is praying continuously in focused prayer. After that, from their life, no one can separate their prayer life. It is a lifetime in their life. और अगर कोई इंसान 40 दिन लगातार प्रार्थना करता है तो वो उसके जीवन में उतर आती है। वो चीज प्रार्थना का समय वो 40 दिन जो उसने गुजारे कोई भी इंसान जीवन भर उससे अलग नहीं कर सकता है। So Jesus Christ, He is the best example for us. He already gone through in the flesh like us. He tempted through the devil in the own flesh how we are living in this world. और यीशु मसीह का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस बाइबल में दिया गया है कि 40 दिन जब वो उपवास कर रहे थे शैतान उन्हें कैसे उकसा रहा था पर वो उससे बाहर निकल पाए वचनों के द्वारा। So his practice in the prayer life and overcoming the devil through the promises of God, that is continuously helping Jesus until he lived in this world. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लगातार उन पे बातों पे विजय पाते जाते हैं जिसमें शैतान हमें भड़काता है, उकसाता है, ऐसा वचन कहता है। So after this 40 days prayer, what happened in the life of Jesus? और इन 40 दिनों के बाद क्या हुआ था यीशु मसीह के जीवन में? After that, Jesus very clearly he is explaining, myself and my Father, we are one all the time. I am hearing my Father. I am doing what the Father is telling me to do. और इन 40 दिनों के बाद ऐसा हुआ था कि यीशु मसीह कहते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा है कहते हैं
कि मैं और मेरा पिता एक है, मैं वो ही करता हूँ जो वो देखता है और वो जो करते हैं। तो वो उनको इतने करीब आ गए थे एक इंसान के रूप में। जब यीशु मसीह ने ऐसा किया तो उनकी लाइफ में उन्होंने दिखाया कि वो और पिता एक जैसे हो गए हैं। So in our lives also, we should be one in Christ, one in the Spirit. This 40 days prayer should make us one. Our mind should not disturb with the worldly things anymore. और इस 40 दिन के उपवास में हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी प्रार्थना एक जैसी हो जानी चाहिए, ताकि हम भी परमेश्वर में, उस पिता परमेश्वर में यीशु मसीह जैसे एक जैसे हो चले जाएं। So how we are remembering the birth of Jesus Christ, the crucifixion of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ, we have to remember this 40 days prayer life of Jesus Christ also. जैसे हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, हम ये भी मनाते हैं, ईस्टर आता है, वो जी उठे थे, हम और भी दिन मनाते हैं, वैसे ही हमें ये 40 दिनों के बारे में भी अच्छे से समझना चाहिए और इन्हें मनाना चाहिए। Because all these things are helping us to grow in our spiritual life every day. और ये सारी बातें हमारी मदद करती हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। The same way Jesus Christ, he personally told to remember one thing, that is the Holy Communion. और इसी तरह से वचन में कहता है, यीशु मसीह ने खुद से कहा, ये उन्होंने बोला कि एक बात याद रखना जब आप उस रोटी और उस प्याले से पिएं। So remember my broken body, और remember the blood of the new covenant every day. Through that also we should remember Jesus Christ and grow in our spiritual life. और उस रोटी के टुकड़े से जब हम खाते हैं वो जीवन पाते हैं, और उस प्याले से जब हम पीते हैं हमारे पाप धुलते चले जाते हैं। ये बात उन्होंने बोली, रोज करते रहना और याद रखना ताकि तुम मुझ में बने रहो। So this from today onwards, how many of you are willing to pray 40 days continuously more and more? Decide in your heart, Lord, these 40 days should be implemented. Lord, I should implement in my life practically. Lord, after the 41 days, I should not go to the worldly life. I should grow more towards your holiness, Lord. Help me. That should be our prayer. और इन 40 दिनों में कितने ही आप में से लोग हैं जो अपने दिल को अपने अंदर ये वायदा करते हैं, परमेश्वर इन 40 दिनों में मैं तेरे करीब चलूंगा ताकि मेरा जीवन बदलता चला जाए, ताकि मैं वो सब कर सकूं जो तू चाहता है मेरे लिए। तो इन 40 दिनों के उपवास को अपने अंदर लागू जब हम करते हैं तो आप अपने लाइफ में देखेंगे कैसे बदलाव आएंगे। So many more 40 days are mentioned in the Bible. Just I am giving you the place. Jonah prophesied about the 40 days time of the grace period. Jonah 3:4 says. अगर जोना प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, उसने कहा है 40 दिन का जब वहां पे उपवास हुआ था, उनके ऊपर एक अनुग्रह के समय आ गया था, ऐसा जोना 3:4 में लिखा है। Moses was on the Mount Sinai for 40 days, Exodus 24:18. आप सब जानते हैं जो मूसा था वो भी उस माउंट साइनाई पे था 40 दिन तक, ऐसा एक्सोडस में। Elijah traveled 40 days to Mount Horeb, 1 Kings 19:8. जो इलाइजा प्रॉफिट था वो भी 40 दिन माउंट हर्बन तक उसने वो चला, और ऐसा पहला राजा 19:8 कहता है। So the same way, many things written in the 40 days, the Bible very clearly says that 40 days continuously there was a rain during the time of Noah. और जब हम देखते हैं 40 दिनों के बारे में बार बार अलग अलग बातें बताई गई हैं, और नोहा के बारे में भी ऐसा लिखा गया है कि 40 दिन तक लगातार बारिश होती रही। So our main important thing is 40 days, the prayer of Jesus. और हमारे लिए इस समय में सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण क्या है, क्या मतलब है कि हम उसको देखें कि यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। Why Jesus gone through these 40 days? क्यों यीशु मसीह ने चुना 40 दिन उपवास के लिए? For every one of us. हम सब के लिए। Several times the worldly things are coming in our mind even though we are in spiritual life. और बहुत बार ऐसा होता है कि संसार की बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं जबकि हम आत्मा में चल रहे होते हैं। So that's why we should increase the prayer, and this will be a 40 days will be a well practiced, then
our spiritual practice will not be separated, disturbed by the worldly things. तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये 40 दिन आए हैं, हमें दिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के और भी करीब आ सके और इस संसार की बातों में ना भटक सके और ये जीवन भर हमारे जीवन में बना रहे। So what we have to do, what is our focus during these 40 days? तो हमें क्या करना चाहिए और हमें किन बातों की तरफ ध्यान करना चाहिए इन 40 दिनों के अंदर? So what happened in the life of Jesus Christ? The 40 days prayer is given him the more focus towards his suffering on the cross. और क्या हुआ था 40 दिन जब यीशु मसीह ने उपवास किया था, जो उनका ध्यान था, उनका जो समझ थी पूरी तरह से उस क्रूस की तरफ चली गई थी। So before that, in this world there is a kind of a practice of doing the sacrifice. और उससे पहले इस संसार में एक ऐसी तरीके की व्यवस्था थी कि आप कुछ भी करो तो आप उसके पापों की क्षमा के लिए आप किसी चीज की बलि दे दो। So the Bible, it's talk about very much about the sacrifices. और बाइबल इस तरह से बहुत बार हमें बताती है कि बलिदान दिए गए। So we have to know that Jesus Christ completed all the rituals, all the things, the minute things written in the Old Testament. Through his own body, he became our only sacrifice. और बाइबल इस तरह से कहती है, जब यीशु मसीह ने अपने शरीर का बलिदान हमारे लिए उस क्रूस पे दिया तो उसने वो सारा दाम चुका दिया, छोटा बड़ा सब, जो पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियम में लिखा हुआ है। So you may ask the question, why we need the sacrifice? अगर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमें बलिदान करने की जरूरत क्या है? So Bible very clearly says, Isaiah 59:2. और इसके लिए बाइबल साफ साफ कहती है, यशाया 59 उसका 2, Your sins and your iniquities have separated you from your God. हमारे पापों के लिए और हमारे उस दुष्टता के अंदर जिसमें थे, उसी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए। Because without sacrifice, our sins can't be we are not live a holy life. So, but here the Bible says we are living in the sins separating us. There is a wall between us and God. We can't able to communicate God directly. और बाइबल साफ साफ कहती है, जब हम पाप में जीते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में वो पाप की दीवार आ जाती है। ये साफ साफ बाइबल में लिखा है और उसको तोड़ने के लिए एक बलिदान की जरूरत होती है, जो यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया। So Romans 6:23 clearly says the wages of sin is death. और रोमियो 6 उसका 23 कहता है कि पाप का जो घड़ा है, उसकी जो दंड है वो सिर्फ मौत ही है। So Hebrew 9:22 says, in fact under the law almost everything is cleansed with blood and without shedding of blood there is no forgiveness. और हिब्रू 9 उसका 22 इस तरह से कहता है कि जब हम व्यवस्था देखते हैं उसमें किसी के भी पाप की क्षमा नहीं होती जब तक लहू नहीं बहाया जाता, बलिदान नहीं दिया जाता। So in the Old Testament, if you read Leviticus chapter 16 verse 3 to 20 in your home, you go and meditate it in deeply. और आप लय व्यवस्था की किताब जो पुराने नियम में है उसका 16 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, आप घर में जाके आप उसको ध्यान से पढ़े, उसमें इन बातों के बारे में बहुत ज्यादा समझ से दिया गया है। So here the process, the methods of sacrifice, how we have to do the sacrifice, it is written in detail. God spoke to Moses directly and Moses given all this instruction to his brother Aaron to do that. और लय व्यवस्था का जो हम 16 अध्याय पढ़ते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को इस बलिदानों के बारे में उसको आज्ञाएं दी और वो अलग अलग तरीके के बलिदान थे और वो मूसा ने पाए, और उसमें उस 16 अध्याय में उस चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। So in this chapter one important thing, there should be a male goats should be sacrificed. So the Aaron, the high priest, should take that blood and sprinkle it in the presence of the Lord before the altar. Through the blood shed, the people's sin will be forgiven. और इसमें एक खास बात ये लिखी है लय व्यवस्था 16:5 में कि एक
मादा बकरी ली जाती थी और उसका बलिदान दिया जाता था और उसके जो लहू होता था उसको छिड़का जाता था ताकि लोगों के पापों की क्षमा हो सके. So the sprinkling of blood, that is the main thing to remove the sin, and the sprinkling of blood will make a way to broke the wall between people and God. तो वो लहू को छिड़का जाना, जब वो लहू में वो छिड़कता था तो वो क्या करता था, वो दीवार जो परमेश्वर की और लोगों के बीच में पाप की आ जाती थी वो टूट जाती थी, और यही उस दीवार को तोड़ने के लिए किया जाता था पुराने नियम के अंदर. So if you go through Numbers chapter 7, this is a very longest chapter. In this Numbers 7th chapter, one word is written more than 12 times, that is one male goat for a sin offering. आप नंबर्स गिनती की किताब अगर आप पढ़े पुराने नियम में, उसका 7-16 इस तरह से कहता है. उसमें 12 बार उस अध्याय में 12 बार ये बात का जिक्र है कि मादा बकरी ली गई. So there should be a sin offering, one male goat. इसका मतलब है कि पाप की क्षमा के लिए एक बलिदान लिया गया और वो बलिदान था एक आदमी का. The blood shed is very essential to remove the sin. और इसलिए पापों की क्षमा के लिए उस लहू का बलिदान होना बहुत ही जरूरी है. So Jesus Christ, he became the sacrifice and he shed his own blood for us on the cross. और हम देखते हैं यीशु मसीह वो बलिदान बना हम मेरे लिए और आपके लिए, और उसने अपने लहू को बहाया उस क्रूस के ऊपर. The 40 days you have to meditate more about the blood of Jesus Christ. और 40 दिन आपको और उस बात पे मनन करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया. So in Hebrew, many places it is written about the blood of Jesus, how it is helping us. और इब्रानियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं बार बार इस बात का जिक्र आता है कि वो जो लहू है, जो यीशु मसीह का लहू है, वो हमें हमारे जीवन में किस तरह से मदद करता है. So if you read Hebrew verse chapter 10:4 says, it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. और इब्रानियों 10:4 इस तरह से कहता है कि ये मुमकिन नहीं कि भेड़ बकरियों का जो लहू है हमें पाप से छुड़ा सके. The Old Testament, the sins will be totally cleansed and removed through the blood, but in the New Testament it is very clearly says it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. जब हम पुराने नियम में देखते हैं वहां पे ये साफ साफ लिखा है कि जब ये भेड़ बकरियों का, बैलों का जब लहू बहाया जाएगा, बलिदान दिया जाएगा, उससे पापों की क्षमा हो जाएगी. पर जब हम नए नियम में आ जाते हैं, इसमें ये लिखा है कि उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो बकरी और बैलों का जो लहू बहाया गया वो हमारे पापों को पूरी तरह से क्षमा कर दे. As I told you, Leviticus 16, there should be one high priest needed for the people. अगर हम लेवी व्यवस्था के बारे में देखते हैं, इसका मतलब है हमें एक महायाजक की जरूरत है लोगों के लिए. So Aaron was our high priest as per the Old Testament. पुराने नियम में जो आरोन था, मूसा का बड़ा भाई था, वो एक महायाजक था. So every time he should enter into the presence of God as per the God's perspective, wearing different type of garments, very minute thing he used to follow, otherwise he will be die before the presence of God. और वही एक ऐसा व्यक्ति था, उस मंदिर के अंदर वो परमेश्वर की मौजूदगी में जाता था, जैसा परमेश्वर ने बोला था उसी तरीके के वो कपड़े पहन के जाता था. अगर थोड़ी सी भी गलती हो सकती थी, अगर उसने करी तो वो मर सकता था. इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था. The Leviticus 16:1, you can read the two sons of Aaron was died in the presence of God. अगर हम लेवी व्यवस्था का 16:1 पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो आरोन के 2 लड़के थे वो परमेश्वर की मौजूदगी में मर गए. So such a kind of a fearful God with his mighty awesome presence. So Bible very clearly says, Hebrew 9:11 says, but Jesus Christ came as a high priest of the good things to come.
जहां हम देखते हैं कि वो परमेश्वर इतना ही महान परमेश्वर है, पर उसके पास हमें भय से जाना चाहिए। और ये दिखाता है इब्रानियों 9 उसका 11 में कि जो यीशु मसीह है वो हमारे लिए महायाजक बन गया। So the Old Testament Aaron was removed by the Lord Jesus Christ. और पुराने नियम का जो महायाजक आरोन था, नए नियम में वो यीशु मसीह के द्वारा उसको बदल दिया गया। So the word 12, it is very important word. Everybody, you should, the 40 days, you should meditate this word of God every day. This word is very essential. जो इब्रानियों 9 उसका 12 जो उसका जो वचन है, आप इस 40 दिन के उपवास में दिन रात इस पे मनन करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So this word of God very clearly says, not with the blood of goats and calves. और ये साफ साफ कहता है, ना तो बकरों और ना बछड़ों के लहू से आप छुड़ाए गए हो। Not with the blood mentioned in the Old Testament, the goats and calves. वो लहू नहीं जो पुराने नियम की वाचा में बताया गया है, जो बकरियों का और भेड़ों का था, But with his own blood. पर यीशु मसीह के अपने लहू के द्वारा, His own blood. It is very important here, friends. उसने अपने लहू के द्वारा हमारा छुटकारा किया। He entered the most holy place once for all. वो हमारे लिए अपने लहू को लेके उस पवित्र स्थान में गया, हम सब के लिए एक बार और सदा के लिए। Aaron, every time he should go continuously. Today one family, they came for the sacrifice he has to do. So then after some time another family, he has to go again. One goat should be slain, killed for the sacrifice. But here, not through the blood of the goat or calves, Jesus shed his own blood for us on the cross. हम पुराने नियम में देखते हैं जो आरोन है वो बार बार उस मंदिर में जाता है। कभी एक परिवार आता है, उसके पापों की क्षमा के लिए वो बलिदान देता है, फिर दूसरा आता है उसका देता है। पर नए नियम में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह उस महायाजक के रूप में एक बार ही उस मंदिर में हुआ और वो सदा के लिए सबके लिए हो गया। So this Hebrew 9:12 says, having obtained eternal redemption. और ये इसलिए हिब्रानियों 9:12 कहता है कि एक बार उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। So we are blessed with the eternal redemption forever through the blood of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा सदा के लिए छुड़ा लिए गए हो। So the 40 days in your mind and heart, you should think about the blood of Jesus Christ more and more. 40 दिन रात आप अपने दिमाग में इस बात को मनन करें कि उस लहू का जो यीशु मसीह का था मेरे लिए बहाया गया। So after the 40 days also, this will continue. It will be your own practice. Nothing will separate you from the blood of Jesus और Christ. 40 दिन के बाद भी आप अपने स्वभाव में बनाए रखें, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर के प्यार से अलग कर सके। So in the Old Testament, one more thing it is mentioned, that is the trumpet, blowing the trumpet. और पुराने नियम में एक और खास बात इस बारे में बताया गया है, जहाँ पे वो तुर्री की बात करते हैं और तुर्री को बजाते हैं। So wherever the trumpet sound is hearing, there is a victory. और जहाँ कहीं हम उस तुर्री की आवाज को सुनते हैं, वहाँ विजय की घोषणा हो रही होती है। So how the trumpet used to made? और वो जो तुर्री थी वो किस तरह से बनाई जाती थी? It should be one male goat should be killed, and through the big horn the trumpet used to be made. जो एक मादा बकरा होता था उसे मारा जाता था, और जो उसका सिंग होता था उससे वो तुर्री को बनाया जाता था। So whenever they are blowing the trumpet taken from that male goat, the kind of the remembrance of that goat, the sound, the entire the process, the sacrifice, one male goat killed, the sacrifice, the power of the sacrifice will blow through the sound of the trumpet. और जहाँ कहीं हम देखते हैं उस एक मेल मादा बकरे को जब मारा जाता था ताकि उसका वो सींग निकाल के उस विजय की घोषणा करी जाए, वो घोषणा उसके सींग से होती थी और इस बात को सबको बताया जाता था कि आप भूले नहीं, आप विजय में खड़े हैं। So Jesus Christ, He made a sacrifice for us.
He already blessed us with a great victory on the cross. और यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सदा का बलिदान कर दिया है और हम सदा की ही उस विजय में खड़े हैं। So all the 40 days you have to blow the trumpet and praise and worship the victory of the Lord Jesus और ये Christ. 40 दिन आपको उस तुर्री को बजाना है और यीशु मसीह के छुड़ाए हुए लहू को अपने परिवारों में उसकी आनंद मनाना है। So what is our trumpet? और हमारे जीवन में वो तुर्री क्या हुई? The passion of the Christ should be our trumpet. वो जो दया भाव है परमेश्वर के लिए, वो जो आराधना करने का भाव है, वही है आपकी वो तुर्री जो आपको बजानी है इन 40 दिनों में। You know how the Jericho wall totally broken into pieces by blowing the trumpet sound, the death of the goats. It should go and destroy the wall. आपको पता है जो जेरिको की वो जो दीवार थी वो कैसे टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई जब वो तुर्री बजाई गई। उस विजय घोषणा से ही वो टुकड़े टुकड़े होके इतनी मोटी दीवार गई और उस विजय की घोषणा हुई उन बलिदानों से, उन भेड़, उन बकरियों, उन बैलों के बलिदानों से हुआ जो सदा के लिए हो गया। The 40 days we have to keep on meditate from the head to toe. The body of Jesus Christ, full of wounds, full of suffering, full of stripes. From the head to toe you have to meditate and worship the Lord. 40 The power of God will flow whenever you are doing the worship by meditating the passion of Christ. 40 दिन आप दिन रात इस बात पे मनन करें कि यीशु मसीह के सर से लेके पैर तक उसने हमारे लिए चोटें खाई, हमारे लिए उन घावों को अपने शरीर पे लिया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। जब 40 दिन और रात आप इस बात पे मनन करते रहते हैं तो वो लहू आपके जीवन में कार्य करने लग जाएगा। Such a way we have to pray for the 40 days. इस तरह से हमें इन 40 दिनों में प्रार्थना करनी You है। have to meditate the head of Jesus Christ, how it is totally damaged through the poisonous, the thorns made as a crown. आपको 40 दिनों में ये भी याद रखना है, मनन करना है कैसे वो कांटों का ताज जिस पे जहर लगा था यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पहना था। How that thorn, poisonous thorn, it's entered inside and affected the brain, affected the eyes. It is Jesus gone through such a pain personally for every one of us. वो कांटों का जहर भरा ताज जो उसके सर पे डाला गया था, कैसे उसके दिमाग पे असर हो रहा था, उसकी आंखों पे असर हो रहा था, इसलिए उसने दर्द सहा ताकि मैं और आप उस लहू के द्वारा छुड़ाए जाएं, उसके दर्द के द्वारा हम दोनों छुड़ाए जाएं। So we have to meditate the 40 days like that several times in our mind. Lots of the badly lustful things are coming. All the unwanted temptation are coming. We have to overcome by meditating the wounds of Jesus from the entire body of Jesus Christ. हमें इन 40 दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह के उन घावों को ध्यान रखते हुए प्रार्थना करते रहना है, मनन करते रहना है कि उसने हमारे लिए इतना दर्द सहा, हमारे लिए इतनी पीड़ा से ही उसे क्या जरूरत थी उस ताज को पहनने के लिए हमारे लिए लिया ताकि हम छुड़ाए जाए। आप इस पे बहुत गहराई से मनन करें इन 40 दिनों में। So come back to this Hebrew 9, another 3 words I am going to give you. So Hebrew 9:13 says, for if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh. और ये इस तरह से कहता है इब्रानियों 9:13, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोरों की राख अपवित्र लोगों को छिड़कने से शरीर को शुद्धता के लिए काम करती थी। It's talk about the Old Testament sacrifice. और ये हमें पुराने नियम की उस व्यवस्था के बारे में The बताता है। 14 word, it's not like this. In English, it is very wonderful. It says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. और अब अगर हम इंग्लिश में इस वचन को उसकी 9:14 को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि यीशु मसीह का लहू जो एक परमेश्वर का लहू है जो बहाया गया ताकि आप सदा के लिए पवित्र हो जाए, सदा के लिए आप
उस अनंत काल के जीवन में चले जाएं सदा के लिए। आपने परमेश्वर ने आपको हर चीज से बंधुआई से छुड़ा दिया और ये समझ जब आपको मिल जाएगी और आप एक जीवित परमेश्वर की जीवित संतान बन जाएंगे। So the meaning of the how much more means 100% sure you can live a holy life for Jesus Christ. इसका मतलब यह हुआ कि अगर भेड़ बकरियों का जब वो लहू बहाया गया तो उससे अगर छुड़ाए गए तो आप कितने ज्यादा छुड़ाए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आप उस बात की अहमियत को समझें। So Jesus Christ is ready to help you in your 40 days prayer life. और यीशु मसीह आपकी मदद करेगा इन 40 दिनों के उपवास के दौरान। So how if you are not yet filled with the Holy Spirit, ask the Lord, because without the Holy Spirit you can't pray in a proper way. आप में से अगर कोई है जो पवित्र आत्मा से समय में नहीं भरे हुए हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे भर दे, तभी इन 40 दिनों में वो आपकी अगुवाई करेगा। So the final word, this Hebrew 9:15 says, and for this reason Jesus is the mediator of the new covenant by means of death. और इस इब्रानियों 9:15 में इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच के एक बिचौलिए बन गए, उनके द्वारा ही सब कुछ हुआ और हम उस मौत से छुड़ाए गए। So every day during these 40 days, you should renew your covenant with the Lord. Lord, my covenant with you, it should be more strong, because Bible very clearly says we are made as a virgin bride for the bridegroom Jesus Christ. और इन 40 दिनों में आपने जो भी वादे परमेश्वर से किए हैं उनको और दृढ़ता से पकड़े रहें, रोज उनको दोहराएं कि यीशु मसीह जो वादे मैंने तुझसे किए हैं मैं उनमें बना रहूं, क्योंकि नई वचन में, नई वाचा में इस तरह से लिखा है कि हम परमेश्वर की वो दुल्हन हैं और आप अपने दूल्हे को पकड़े रहिए और उसके लिए तैयार होते जाइए। So every day your 40 days prayer should be by meditating Jesus, the passion of Christ, through the help of the Holy Spirit. और इन 40 दिनों में आपको रोज इस बात पे मनन करना है, वो परमेश्वर की दया उसके वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा अपने जीवन में। All the time remember the blood of Jesus Christ. Every day when you pray, you have to go very deep to the bleeding side of Jesus Christ on the cross. Go close to the cross of Jesus. There is a blood shed in the side of Jesus. There is a opening from there. The blood and the water is coming, flowing. You should fully sprinkled by the blood of the Lamb every day. और इस 40 दिनों में आप इस तरह से प्रार्थना करें कि जब आप प्रार्थना में जाएं, आप इतनी गहराई में चले जाएं कि आप उस क्रूस के पास अपने आप को ले जाएं, जहां पे यीशु मसीह उस क्रूस पे लटका हुआ है, उसके शरीर से लहू टपक रहा है नीचे, उसके घाव आप देख सकेंगे, उसका भाले की चोट देख सकेंगे जिसमें से लहू और पानी निकल रहा था। आप अपने आप को उसके करीब ले जाइए। Today is the day of decision. आज ही वो दिन है जिस दिन आपको इस बात को निर्धारित करना है। Lord, this coming 40 days, I am going to fully empower with the grace of God to pray continuously. परमेश्वर मुझे इस 40 दिनों में पूरी सामर्थ से भर दे कि मैं इसमें परमेश्वर की उस अनुग्रह से भरा रहूं। Lord, I will not backslide. I will not go back to the world anymore. परमेश्वर मैं पीछे ना गिर जाऊं और मैं संसार की तरफ ना मुड़ जाऊं। Everyone, you close your eyes right now. हर कोई अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। Now the Holy Spirit is going to enter every one of your heart. और इस समय पवित्र आत्मा हम सब के दिलों में आएगी। There should be a conviction in your heart today. और आपके दिल में उस बात का बदलाव, उस बात का जाहिर होगा कि क्या गलत है। The Holy Spirit will convict in our spiritual life about our sin, and He will all the time about the righteousness. और पवित्र आत्मा हमें उस बात को जाहिर करेगी जो हमारे अंदर पाप है, ताकि हम उसके लिए परमेश्वर से माफी मांग सके और उसकी ओर मुड़ते चले जाएं। Everywhere before the Lord's second coming, the Holy Spirit is going to be poured in a mighty way among the people. जहाँ कहीं हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने जा रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से उंडेल दिया जाएगा सबको। Everywhere there is a revival
revival started. We are reading in the news in America, many places it is already started. और आप में से बहुत लोगों ने अगर न्यूज में देखा है, अमेरिका के देश में वो जागरण शुरू हो गया है अलग अलग जगहों पे। What is the real meaning of the revival? In your heart, in my heart, I should receive the revival inside my heart. Lord, I will not do sin anymore. The conviction should start in my life, in your life. That is the main revival, dear और ये friends. जागरण क्या है? ये जागरण आपके दिलों के अंदर है कि हाँ, मेरे दिल को बदल दे परमेश्वर, मैं पवित्रताई में जीऊं। वो जागरण आपके दिलों में, आपकी जिंदगियों में होना चाहिए, तभी वो आपके शहर और देश में बढ़ता चला जाएगा। आपको उस बदलाव को अपने दिल के अंदर लाना है। How many of you are ready to live a holy life? आप में से कितने लोग हैं जो पवित्र जीवन में जीना चाहते हैं? It is very easy through the blood of Jesus ये Christ. बहुत ही आसान है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Today take a decision. Jesus, cleanse me, Lord, with your precious blood और today. आज इस बात को अपने दिन में निर्णय ले लीजिए, परमेश्वर मुझे साफ कर दे अपने खून से। Everyone, you cry before the Lord. Today take a strong decision and determination from your heart today. अपने दिल से इस बात का वादा कर लीजिए, परमेश्वर मुझे साफ कर दे और मैं मुड़ने ना पाऊं तुझसे कभी। How many times, Lord, I am backsliding? How many times, Lord, I am going through the world again and again and coming back? Lord, I no need this life, Lord. Make me totally, Lord, make me transform today, Lord. Everybody pray like this today. आप सब इस तरह से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं कितनी बार संसार में गिर गया, कितनी बार मैं संसार की तरफ मुड़ गया, पर मुझे अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर, तेरे लहू से मुझे साफ कर दे। और इस वचन को आप अपने अंदर बांध लीजिए, इस वायदे को जो आप और परमेश्वर करने जा रहे हैं। Many of us, we are prayed many hours before earlier, but now our prayer time reduced, our Bible reading time reduced. We are busy with the family, we are busy with the children. Dear friends, Jesus is going to come back very soon. Before that, first revival should start in your life, in my life. That is the expectation of the God. बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले सब प्रार्थना में बहुत समय बिताते थे, पर अब वो बदल गया है क्योंकि आप संसार में अपने परिवार में बिजी हो गए हैं। यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। तो प्रिय मित्रों, अपने जीवन को बदल दो, उसमें वो जागरण ले आओ, क्योंकि आपके लिए ही वो आ रहा है। Today ask the Lord, Lord, today make a new covenant with me, Lord. New covenant with me, Lord. How many of you are ready to receive the new covenant today, the first day of the 40 days of your prayer? और आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे को एक नया वादा दे। इन 40 दिनों में आप में से कौन है जो उस नए वादे को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? Everyone open your mouth and ask the Lord, Lord Jesus, give me the grace. Everyone, you open your mouth and ask the Lord for the special grace today. और इस 40 दिनों में आज जब पहला दिन है उस उपवास का, अपने दिलों को, अपने मुंह को खोल के मांगे, परमेश्वर अपने उस अनुग्रह से मुझे इस 40 दिनों में भर दे। Jesus Christ, He became our only sacrifice. यीशु मसीह ही वो एक इकलौता बलिदान बना हमारे लिए। Hereafter no more the worldly sacrifice, because Jesus Christ already completed everything. उसके बाद और कोई बलिदान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात पूरी कर दी है। Today from your heart you can take a decision and make a new covenant. Lord, I will live for only Jesus in this world. और अपने दिल से आज परमेश्वर से ये वादा कर लीजिए कि मैं अपने दिल से ये मानता हूँ कि तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। The Holy Spirit is ready to help you in your weakness from today onwards. पवित्र आत्मा आप लोगों की मदद करेगी जहाँ कहीं हम कमजोर हैं अपने आत्मा के जीवन में। The flesh is weak, the Spirit is willing to empower you. हमारा शरीर तो कमजोर है, पर परमेश्वर की आत्मा में उतनी सामर्थ है कि वो हमारी मदद कर सके। Now the Holy Spirit is coming, every one of you. हम सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है। Everyone be filled with the Holy Spirit now. पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। The Holy Spirit is coming and filling you. पवित्र आत्मा आ रही है और आप लोगों को भर रही है। Everyone be filled with the Holy Spirit now. हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। Your prayer life is going to be increased. आपकी प्रार्थना का समय बढ़ता चला जाए। The Lord want to restore your spiritual life today. परमेश्वर आपके वो प्रार्थना के समय को बचा लेना चाहता
जाता है। In your altar there should be a fire all the time. आपके अंदर हर समय वो परमेश्वर के लिए आग निकलती रहनी चाहिए। Today the Lord want to repair your altar today. आज से परमेश्वर हर घावों को उसकी मरम्मत कर देगा। He want to repair your altar today. आज से वो तुम्हारे प्रार्थना के उस वेदी को उसकी मरम्मत कर देगा। Because there is going to be the great fire is going to come and fill you. और आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आग उतरेगी आप लोगों के ऊपर और आपको भर देगी। According to Haggai 2:9, the later glory is so great, says the Lord. और बाइबल में इस तरह से लिखा है कि जो बाद की जो महिमा उतरेगी वो बहुत ही महानता से होगी। The new glory is coming and filling every one of you. वो नया अनुग्रह आप लोगों के ऊपर उतर रहा है और आप लोगों को भरता चला जा रहा है। Receive the new glory today. इस समय परमेश्वर के उस नए अनुग्रह को ले लीजिए। The Holy Spirit is empowering every one of you right परमेश्वर की now. पवित्र आत्मा आपको सामर्थ से भर रही है। The Lord Jesus is making your home holy. परमेश्वर आपके घर में पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है। There should not be any sin inside your home. आपके घर में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। The blood of Jesus Christ is cleansing your home today. परमेश्वर का लहू आपके घर को साफ कर रहा है। The blood of Jesus Christ is cleansing every one of you right आप now. सबको यीशु मसीह का लहू साफ कर रहा है। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। The Lord is going to help you to grow in your spiritual life. परमेश्वर हमारी मदद करेगा ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। Because how much more you are growing in your spiritual life, the worldly blessings will automatically reach you. और जितना आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे संसार की सुख सुविधाएं आपके जीवन में आती चली जाएंगी। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Take a decision, Lord, the 40 days I will pray without any gap. और आज से आप ये निर्णय ले लीजिए कि 40 दिन बिना नाका किए मैं प्रार्थना में बना रहूंगा। Lord, I will give a good time in prayer with you, Lord. परमेश्वर मैं अपना बहुत अच्छा समय तेरी प्रार्थना में गुजारूंगा। This year 2023 is a decision year in my life. जो अज़ाया 23:23 कहता है कि ये वो साल है जो निर्णय का साल है। This year onwards I am going to grow in the Holy Spirit. और इस साल से मैं पवित्र आत्मा में बढ़ता चला जाऊंगा। This 2023 is a year of decision in my life. ये 2023 हमारे साल हमारे जीवन में निर्णय का साल है। All the time the cross will be before me. हर समय वो यीशु मसीह का क्रूस हमारे सामने होना The world चाहिए will behind me. और जो संसार है हमारे पीछे होना I will चाहिए not turn back और anymore. मैं पीछे ना मुड़ूंगा। Every day I will grow more and more in my spiritual हर रोज life. मैं पवित्र आत्मा में जीवन में बढ़ता चला जाऊंगा। Whenever I read the Bible, I will get the revelation from the Holy और Spirit. जब भी मैं पवित्र आत्मा को पढ़ूंगा वचनों को पढ़ूंगा परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के जरिए नए नए प्रकाशन देगा। Every day I will pray more in the heavenly language, the unknown tongues. और हर दिन मैं अन्य भाषाओं में और ज्यादा प्रार्थना करूंगा उस भाषा में जो स्वर्ग में बोली जाती है। Hereafter, the night time, any bad dreams will not disturb my mind. और आज के बाद कोई भी वो खराब सपने बुरे सपने मेरे दिमाग को रात को नहीं बर्बाद करेंगे। Today onwards, I am going to see only the heavenly vision and dream. और आज से रात को मैं हमेशा स्वर्गीय सपने देखा करूंगा। Hereafter, I will only see Jesus Christ in my dream. और आज के बाद से सिर्फ मैं यीशु मसीह को ही अपने सपनों में देखूंगा। Everyone you ask the Lord, the grace is coming and filling you. हर कोई इस बात को मांगे कि कोई परमेश्वर का अनुग्रह आप पे उतर रहा है और आप लोगों को भर रहा है। Thank you for answering our prayer, Lord. धन्यवाद परमेश्वर हमारी दुआ को उत्तर देने के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।